Thank you, Rahul. Thank you so much for coming to the Indian Weekender Studios. This is the first time you're contesting for the Parliament. Could you tell us about your journey from India to New Zealand? So, Ravi ji, namaste, sat sri akal, and salam to you. Welcome to New Zealand. I know that you have recently arrived here. My journey to New Zealand began in 2004. I landed in July of 2004 to pursue my higher studies after graduating in India. From there on, I worked with the ASB Bank for about 3.5 years before deciding to pursue a master's in public policy from AUT, or Auckland University of Technology. Completion of my master's led me to find a job with Parliamentary Services, where I've been employed for the past 12 years or so. So I started in January 2012, and it's August 2023. I'm currently on leave to contest the general elections of 2023 from Mt Roskill electorate as a candidate for ACT New Zealand, or Association of Consumers and Taxpayers. If I talk to you about my political journey, I wouldn't say it's been accidental, but I wouldn't say it's been strategic either. It's been a mix of both. For me, fortunately, I have had a leader in David Seymour who sees the need and the thought to encourage his staff to become a part of the governance of this great nation state, New Zealand. He has previously encouraged our Deputy Leader, Brooke Van Belden, to work with him on the euthanasia bill for about 3 years. And then, based on her work profile, she was encouraged to stand as a candidate and eventually made it to Parliament. And of course, as you know, she's now the Deputy Leader. Similarly, when I joined David, I was encouraged by him and his team to take the progressive step forward and stand as a candidate. Of course, based on the encouragement of the leadership, you feel that you are in the right space amongst the right people to make that pitch, and I did that. That's been, in a summary, how I've landed up where I am. So then, how did you end up choosing ACT to get into politics? I wouldn't say I chose ACT as such. It was more, like I said to you in my previous response, that we chose each other as partners or co-workers, David and myself. As I worked with David, I started to read the man, to read his viewpoints, his values, the way he wants to see New Zealand. And I could see my values of aspiration, my values of ambition, my values of giving back to the community in that ecosystem. That's when when he encouraged me, I definitely spoke to him that I would like to stand as a candidate, and that's how I ended up being a candidate for ACT New Zealand. So this election, ACT's slogan is "Real Change." What does it mean? In the simplistic of terms, Ravi ji, real change का मतलब है कि नेशनल और लेबर का जो स्टेटस को चल रहा है 19-21 का काम, उससे हट के काम करना. तो इफ़ आई टॉक टू यू कि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहते हैं. टेक्नोलॉजी में यूनिकॉर्न्स हैं. यूनिकॉर्न्स होते हैं जो क्या, फॉर एग्जांपल यू आर अ वेंचर कैपिटलिस्ट, आपके पास 100,000 दिन की एप्लीकेशंस आएंगी कि वी हैव दिस ब्राइट आइडिया and we would like to disrupt the status quo. So for us, real change is disrupting the status quo, be it in terms of the cost of living, be it in crime, be it in the co-governance model, or be it for what we see New Zealand to be. ACT, David, and our caucus sees New Zealand as a country or a nation state that has a lot of potential. Significant potential, but we are often restricted by, if I can say, unnecessary bureaucratic rigmarole or hurdles that are put in our way. A simplistic example is we put out our health policy yesterday. तो health policy में हमने कहा है कि न्यूजीलैंड में हेल्थ प्रोफेशनल्स की, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, जीपीज, नर्सेज, इन सब की कमी है.
हमारे शोर्स पे कई सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आते हैं जो उनके पास स्किल लेवल है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है. Often they are made to do work in jobs that are way less in comparison to their skill and experience level. तो हम अपनी हेल्थ पॉलिसी में क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी कंट्री को ज़रूरत है, ऐसे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं वो अगर वो एप्लीकेशन के क्राइटेरिया मीट करते हैं तो किसी वजह से अगर उनकी एप्लीकेशन रह जाती है तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को एक डेलीगेटेड पावर होनी चाहिए कि वो उस एप्लीकेशन को कंसिडर करके अप्रूव कर दे, सो दैट people who are here to work on their skills actually get to provide those skills to the wider community. There's a like I said at the start of my response to you, there's a deep shortage of doctors, nurses, you name it. हेल्थ का तो कोई भी एरिया ले लीजिए, उसमें शॉर्टेज ही शॉर्टेज है. जब मैं यहाँ आया था, मैं अपनी डॉक्टर को मेरे ख्याल $10 या $15 देता था. अगर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, most of the time I used to get it the same day, otherwise within 24 hours. If I call now, I'll probably won't get an appointment for 2 weeks. Why? Because we have a shortage. जो हमारा skilled मैन पावर है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रेविटेट कर जाता है. उसका रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न है, we are not able to pay what Australia can pay. तो how can Australia afford all that, you will ask? Because I mean they are making use of the natural resources they have. They are able to mine those resources and sell it to markets that are able to pay premium prices, be it India, be it China, be it any other market. हम न्यूजीलैंड में क्या कह रहे हैं? हमारी कंट्री ग्रीन प्रिस्टीन है, एक्सेप्टेड ग्रीन प्रिस्टीन है, लेकिन अगर मैं if I share an anecdote with you, there was a time in July last year when the entire Auckland power system was about to be shut. We had only 30 days of coal supply available to us. We had to ship the dirtiest of the dirtiest coal from Indonesia to run our power systems. ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को फ्यूल कर सकते हैं और अब ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको पे कर सकते हैं तो क्यों नहीं. ये एक एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल है हमारा जो लीडर है डेविड सीमोर, उन्होंने एक फुल्ली कॉस्टेड बजट निकाला है. उस बजट के अकॉर्डिंग जो कॉस्टिंग करी है हमने वो ट्रेजरी के डाटा के अकॉर्डिंग है. बहुत सारी वेस्टफुल स्पेंडिंग है जो ये करंट गवर्नमेंट कर रही है. उस वेस्टफुल स्पेंडिंग को अगर हम बचाएं तो 2 साल के अंदर 16 बिलियन 16 अरब डॉलर बच सकते हैं. वो 16 अरब जो डॉलर बचेगा वो हम अपनी जो सपोज़ कोई फैमिली है जिसमें एक पेरेंट नर्स है, उनका एक बच्चा है, दैट फैमिली विल बी बेटर ऑफ $2,300 पर ईयर अंडर द एक्ट फुल्ली कॉस्टेड बजट. और जस्ट टू बी वेरी क्लियर, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम एसेंशियल सर्विसेज चाहे वो हेल्थ की हैं, चाहे एजुकेशन की हैं, चाहे वो पुलिसिंग की हैं, वो काटेंगे नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ हम वेस्टफुल स्पेंडिंग को टारगेट करके इतना पैसा बचा सकते हैं और वो पैसा आपकी जेब में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा. ये जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है, आई बिलीव वन ऑफ दैट वेस्टफुल स्पेंडिंग दैट एक्ट इज, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट्स बीन रिपोर्टेड एज द एथनिक अफेयर्स मिनिस्ट्री. Is this act proposed to continue with the ministry or shelve it? तो जी, the way ACT feels about anybody. So for ACT, for our leader, for me, you are a New Zealander. You may come from any origin. You may come from the Indian origin, Chinese origin, Irish, Scottish, doesn't matter. For ACT, you are a New Zealander. We would rather spend your taxation, your hard-earned money that you give us as the government of the day to spend on services that improve your livelihood. So better education for you, your children, your future generations, better healthcare for you, your future generations, better facilities, be it in any area for yourself and your families. So if I box you into a certain ethnic group, our view is we are targeting you specifically, and we are a party that believes in equality, in maintaining status which is not based on race. When it comes to healthcare, education, you name it, we want everybody to have an equal opportunity. But the whole point behind the ethnic affairs ministry would be that the needs for the migrants
are probably very specific and probably different from those of the rest of us. So there is still not a case to have a dedicated department at least focused on that. So Raviji, I'll try and answer this question with what I've seen in the past 2 weeks that I've been out campaigning. So my area, as you said, is Mt Roskill. I've met a number of shop owners, a number of retail business owners. They haven't said that we are in need of an ethnic ministry. What they are concerned about is crime. Crime doesn't see a race before it hits you. Mm-hmm. They will target you regardless of which origin you are. And this has been true of many shops that I visited in Mt Roskill, on Sandringham Road, that regardless of the person's origin, people have come into the store, people have hit the person. कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई तो सबको हिट करेगी. जब आपकी सरकार, जो करंट सरकार है, लेबर सरकार, उन्होंने इतने पैसे प्रिंट करके बांट दिए हैं कि जो रिजर्व बैंक है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक करे ही जा रहा है. तो एक मॉर्गेज जो आप फोर्टनाइटली या मंथली, जिसके फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली 2000 देते थे, अब वो 2500 पे पहुंच गया है. तो वो जो आपकी क्या स्पेयर इनकम थी, वो अब स्पेयर नहीं रही है. आपको उसको बैंक को देना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक आपको अब बोलेगा भाई आई नीड माई मॉर्गेज बैक, हाउ यू गोना रीपे मी, राइट. ऐसे ही क्या आप सुपरमार्केट में चले जाइए, हर चीज़ महंगी है. आप किसी कैफ़े में चले जाइए, अभी हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो वो कॉफ़ी जो अभी 6 महीने पहले $4 की थी, अब $5.5 की है. तो ये सब चीज़ें तो रेस देख के नहीं होती है. एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ हु गोज एंड पेज फॉर इट. तो दिस इज द वे वी लुक एट थिंग्स. वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग दिस नेशन स्टेट. वी बिलीव दैट अगर हम इकट्ठे रहेंगे, छोटी सी कंट्री है, बहुत सी सुंदर कंट्री है, 200 एथनिसिटीज़ यहाँ रहती हैं, अगर वो सब साथ में मिलके कोलैबोरेशन से काम करें, डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, डिस्पाइट कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब इररिलेवेंट है. हम देश में क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम सबका एक ही गोल है. हम यहाँ क्यों आए हैं? प्रोस्पेरस होने के लिए आए हैं. हम यहाँ एस्पिरेशन लेके आए हैं, एम्बिशन लेके आए हैं. तो अगर हम वैसा करके, वैसा सोच से अपने कंट्री के लिए काम करेंगे, तो एक्ट और मेरा वैल्यू सिस्टम और डेविड का वैल्यू सिस्टम कहता है कि हम इस कंट्री को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं. ओके. Could you talk a bit about your constituency, Mt Roskill? आप पहली बार यहाँ से contest कर रहे हैं. What's your sense about, what the issues are? Ethnically, the most diverse constituency across New Zealand. हर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी कि एक मल्टी एथनिक नेशन स्टेट है न्यूजीलैंड, लेकिन उसके अंदर माउंट रॉस्किल सबसे ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है. जो नीड्स हैं, अगेन मेरे ख्याल से तो जो जितना मैंने सेंस करा है लोगों से मिल के पिछले 2-2.5 हफ्ते में, नीड्स वही हैं जी. हम यहाँ आए थे कि हमें एक सेफ़ लाइफस्टाइल मिलेगा. हमें ये नहीं था कि आज अगर हम अपनी क्या रिटेल स्टोर चला रहे हैं या नौकरी से वापस आ रहे हैं और क्या फुटपाथ पे वॉक करते हुए घर जा रहे हैं कि हम पे अटैक कर देगा. लोग सेफ बिल्कुल नहीं महसूस करते. एक टाइम ऐसा था जब आपके पास अगर घर है तो आप उस घर के बाद एक क्या छोटा सा पीस ऑफ पेपर लगा के चले जाओगे कि हम छुट्टी पे गए हुए हैं, अगर कोई यहाँ छुट्टी पे हमारी कंट्री में आ रहा है तो प्लीज़ हमारा घर यूज़ कर लो, जैसा मिला वैसे छोड़ जाना, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है. कोई आपसे कॉस्ट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए. मेरे ख्याल से आज की डेट में चाहे वो माउंट रॉस्किल है, चाहे वो देश का कोई पार्ट है, इवन द रिमोटेस्ट पार्ट, आपको ये ऑफ़र नहीं कर पाएगा. क्योंकि वो माउंट रॉस्किल में हो, चाहे वो क्या वेल्दी सबर्ब्स ऑफ सेंट हेलियर हो, हर में यही प्रॉब्लम है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है, हमें क्राइम की दिक्कत आ रही है. एक एग्जांपल है ब्राउन्स बे यहाँ से बहुत दूर है. बहुत दूर तो नहीं, मतलब एटलीस्ट पीक आवर ट्रैफिक में आपको 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में. उस जगह पे भी अभी 2 हफ्ते पहले एक ग्रैंडफादर और उसका 11 साल 12 साल का बच्चा बैठ के खाना खा रहे थे. एक परपेट्रेटर आया, उसके हाथ में ही हैड अ नाइफ, ही स्लैम्ड इट ऑन द टेबल. वो बच्चा जो था वो सहम के अपनी ग्रैंडफादर के पास चला गया, लिपट गया जाके, कि क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही एक क्या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस था.
तो ये तो चाहे माउंट रॉस्किल है, चाहे ब्राउन्स बे है, हर जगह हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली बात है, वो भी हमारे जो क्या माउंट रॉस्किल की कंस्टिट्यूएंस है, यूजुअली क्या स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, हर टाइप का क्या कहते हैं, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इंसान वहाँ रहता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स देश की प्रॉब्लम है। See, of course, you've pointed out many things that the current government is possibly getting wrong in your worldview. एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो इस current government is probably getting wrong that needs to be fixed straight away? I think if I can repeat a gist of what I've just shared with you, I think there is sheer incompetence across all portfolios. So when they came into government about 5.5 years ago, हमने crime के बारे में, David had put out a policy with our coalition partners of the time that 3 strikes and you need to do your time. What does 3 strikes mean? Well, if you commit a crime 3 times, so first time you're innocent, second time it's a deliberate crime, third time you're trying to stretch the limits of the system that is in place to maintain law and order. If you do that, you'll be put behind the bars. ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने टारगेट रखा कि हम प्रिजन पॉपुलेशन 38% से घटा देंगे। उसके चलते जो जेल में बंद थे वो बाहर आ गए। उसके चलते और ये एक्नॉलेज करने वाली बात है कि क्राइम था पहले भी, ये नहीं कि इन्होंने आके छोड़ दिया उसको, पर इन्होंने जो इनकी जो पॉलिसी टारगेट्स थे उनके चलते वो क्राइम इतना बढ़ गया है कि पहले तो डेयरीज पे अटैक होते थे, अब मॉल्स के अंदर, मतलब मैं आपको अगर बात बताऊं, नॉर्थ शोर में ग्लेनफील्ड मॉल है, ग्लेनफील्ड मॉल में माइकल हिल का जो ज्वेलरी स्टोर है वो मॉल के हार्ट या सेंटर में बना हुआ है। इतना इस टाइम मतलब क्राइम आउट ऑफ ऑर्डर है कि वो मॉल के अंदर जाके सिक्योरिटी होने के बाद विदाउट एनी फियर दे हैव ब्रोकन इन, दे हैव ब्रोकन द शेल्फ्स, दे हैव स्टोलन द ज्वेलरी एंड दे रैन अवे। ये एक हो गया। कीवी बिल्ड की बात होती है, वो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने बोला मैं आऊँगा, मेरे पास पॉलिसी आया है हाउसिंग क्राइसिस सॉल्व करने का, मैं 1 लाख घर बना दूंगा, और ऐसे करके जो बेघर हो रहे हैं, जो मोटेल्स में भी रह रहे हैं, उनको सबको घर मिल जाएंगे। आज तक 5 साल हो गए हैं, कितने घर बने हैं? मेरे ख्याल से 1000 से 1500 के बीच में घर बने हैं। तो ये अगर मैं इन 2 ही की बात करूं तो इनकॉम्पिटेंस भी मेरे ख्याल एक अच्छा वर्ड है। So how do you see ACT's chances this time? Well, I'll try and respond to that with what happened last time. तो 2020 में थी जी जसिंदा और लेबर पार्टी की वेव। Even at that time, we were polling, say, I do not know what the exact polls were, पर जो हमारा आउटकम आया उसमें हम 7.3% ऑफ द वोट शेयर लेके आए। तो हमारे 10 पार्लियामेंटेरियन इस टाइम पार्लियामेंट में हैं। अगर करंट पोलिंग की बात करें तो मैंने अपने लीडर के साथ एटलीस्ट नॉर्थ आइलैंड अच्छे से कवर किया है, और जो हम देख रहे हैं, आप हमारे लीडर की फेसबुक अगर या सोशल मीडिया चेक करें तो उसमें जो हमें जो क्राउड्स मिलते हैं वो फिनोमिनल क्राउड है जी, फिनोमिनल सपोर्ट अक्रॉस न्यूजीलैंड मिल रहा है। डेविड की अपनी इलेक्ट्रेट की बात करें तो वो बिल्कुल क्या ओल्ड फैशन्ड एकदम रीचेक करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ, स्ट्रीट कॉर्नर्स मीटिंग करते हैं। उनका स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर संडे को उनके पास टाइम है और वो ऑकलैंड में है तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं ना, हाथ में खुद अपना माइक्रोफोन लेके फ्रॉम वन स्ट्रीट कॉर्नर टू द अदर स्ट्रीट कॉर्नर वो जाते हैं। हम ब्रुक वेन वेल्डन जो हमारी डिप्टी लीडर है उनकी बात करें, वो ईस्ट अमाकी में डोर नॉकिंग कर रही हैं और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनके पब्लिक मीटिंग में हमने देखा है 450-500 लोग, हमारे लिए उतने बड़े वेन्यूज़ बुक करना मुश्किल है जितने लोग वहाँ टर्न अप कर रहे हैं। रूरल न्यूजीलैंड की बात करूँ तो सेम, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 650 लोग आए थे ऑकलैंड में, और क्या ये हर मीडिया आउटलेट ने इसको कवर किया, क्योंकि वो पेड मेंबर्स थे। वो ऐसा नहीं है कि
we just left the doors open and you can walk in. So somebody paid $50 a pop to come and listen to a progressive New Zealand thought. Okay. Well, thank you so much for making time to speak to us, Rahul. It was a pleasure. Welcome to New Zealand again, and I hope to stay in touch. Thank you.